एट दी एंड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता. अब जितना पढ़ा है इतने दिनों तक वही काम आएगा. Better than previous year. Especially physics was a little bit tougher this time. I could see. डर ऐसा नहीं था. डर वर मतलब पहले अटेम्प्ट में था. सेकंड अटेम्प्ट में तो हो गया ना. लाइक स्वदेश का दूसरा पार्ट बनाना चाहते हो आप भी? पहले नासा, फिर वापस इंडिया, फिर कुछ इनोवेशन इंडिया में. So hello students, today we are at JEE Main Examination Center in Noida, Delhi NCR. Today we are going to capture the reactions of the student and the parent who are going to attempt the JEE Main April 2025 second shift attempt. So basically this year paper have been little bit tougher. So basically what I am going to say that I have just analyzed, either I am talking to too much students or going to colleges, that you crack the paper and you learn something from it. So it is crack and learn. The same term I have used in this video. So what I am going to tell you is that you crack the paper, that is the good. But the main thing is that learn something from it to get some like little bit tips from that learning point of view, and give some tips to your juniors also who are going to attempt the paper next year. So in this video, just watch this video till the end so that you can get to know the students who are attempting the paper in JEE 2026. So, and also the link of the ebook which is going to help you in your JEE preparation as an NRI is in the link which is in our description. So make sure you just go to the link and go through our ebook. If you face any issue, you can connect on the WhatsApp number which is showing you on the screen and in the description of this video. Thank you. So what is the name? Aditya Kumar. Is this is first attempt? No, dropper. I'm in. Okay, so this is second attempt. So how did this attempt went? Good. Better than previous year. So like this time I have talked to some students that they told that this April 25 attempt is more tougher from the last one. So what do you think about it? Yes, it is tougher because there is a slight change in pattern. Like last year, it was in that integer type there was no negative marking, but this year they have added negative marking in that. So it's sort of Because there are some changes in JEE to some changes in seats in this year too, because government has amended something more for the student, which I think it's good for the student that they increase seats in JEE. So like what did you learn from this attempt? You told that this attempt went well. So either you crack the exam or learn something from it. So what did you learn? I learned that everything I can do everything just by doing hard work. Yeah, see, hard work is the main. I think the main thing is that you hard work for something and you got it. So, what tip would you like to give to the students who are going from the next attempt? Next attempt, like next year. Next year, yeah, next year. So just continue doing. Don't stop at any point. You can crack. So, what is the dream college? Dream college is any top government institute, NIT or IIT. What is your expected percentile? Expected is 98. 98 percentile. Thank you. Thank you. What is the name? Mohak. Was this your first attempt? This was second attempt after January. After that, so how did this attempt went? Little worse than January. So, like I read some articles and got to know from some students that the this time the April 25 attempt is a bit tough from the last time. So, what would you like to say about it? Yeah, it was definitely more difficult as I attempted almost the same, but thing is, a lot of guesswork was there this time that I did than before, where I was sure that my answers were. This time, I'm not really sure, and especially physics was a little bit tougher this time. I could see, well, chemistry wasn't that much different, but physics, yeah, definitely a little bit changed. So, what did you learn from this attempt? All I could say is that JEE is very unpredictable, always, no matter what. So this could be a little bit tougher shift than before all the other shifts that I've seen. So, what is your expected percentile? This time, you can't say maybe if all are correct or lesser, maybe 98, and if well enough, then maybe 99 because I attempted like 52 to 53 questions over. Because see, as I think, as I have talked to the students, either you crack the exam or you learn something from it. Either you crack or learn. So, like, what would be the tips which you would be giving to the students who are going from the next year attempt, 26 attempt? For them, I would just say that whatever you do first in coaching and school, just come back and revise whatever
was learned in that class, and then also all the DPPs that the coaching modules give. Just that. If you want have extra time, then you can do other books like Cengage, which other teachers recommend. So what is your dream college? Well, probably something like NIT, maybe IIT also. Depends on it. IIT Bombay. That is a little tougher, but definitely try for IIT because my cutoff is already clear, so we'll try for advanced now. ओके थैंक यू। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। पहली अटेम्प्ट थी आपकी? नहीं सेकंड अटेम्प्ट। कैसा? मतलब सेकंड मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से तो बेटर ही हुआ। हाँ। तो लाइक पेपर से एक रात पहले क्या थॉट था आपका, क्या माहौल था घर में? माहौल तो मतलब नॉर्मल ही था, बस चाहता था कि लाइक पेपर जल्दी हो जाए, लाइक बस चाहता था कि पेपर हो जाए, बस यही था। हाँ, डर वर ऐसा नहीं था, डर वर मतलब पहले अटेम्प्ट में था, अब सेकंड अटेम्प्ट में तो हो गया ना लाइक, तो इसलिए। तो मैम आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगले दिन पेपर है इनका, और लाइक क्योंकि आप तो पेरेंट है और एज अ पेरेंट हम लोग तो थोड़ा लास्ट नाइट तो नहीं, उससे पहले थोड़ा एक्साइटेड थे, बट जैसे जैसे पेपर वो आ रहा था तो हमें लग रहा था कि चलो अब हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुका था ये, ठीक है। तो हम लोग कैजुअली रह रहे थे, जैसे जो भी हमें करना था हम कर रहे थे। लाइक इन्होंने लाइक कितने टाइम प्रिपेयर किया, लाइक इनका तो स्ट्रगल ही, तो एज अ पेरेंट आपका भी कुछ ना कुछ उसमें रहा होगा, क्योंकि जेई खाली एक स्टूडेंट का नहीं। रिजल्ट आएगा तो थैंक यू। तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा? क्या ड्रीम कॉलेज? कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी कॉलेज चलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाइक। सो ओके, सो लाइक पेपर में या तो देखो आप पेपर आप क्रैक कर लेते हो, या तो आप उससे कुछ लर्न करते हो, तो आपने इससे क्या लर्न किया? हाँ लाइक इसमें मेन था कि लाइक फोकस, लाइक यू नो काफी सिली मिस्टेक्स वाले वो पॉइंट्स थे उसमें, ठीक है। तो लाइक मतलब क्वेश्चन को टेक्निकली लाइक ध्यान से रीड करना था। हाँ लाइक क्योंकि मतलब बस थोड़ा सा भी चेंज लाइक उसमें डेटा ऐसा दे रखा था कि थोड़ा सा भी आप लाइक मिस इंटरप्रेट करते हो और फिर लाइक। क्योंकि इस बार की जो अटेम्प्ट थी वो लास्ट टाइम से काफी टफ आई है ऐसा, क्योंकि फिजिक्स पार्ट बोला जा रहा है। हाँ फिजिक्स मतलब हाँ मतलब सेकंड अटेम्प्ट से लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर थी। हाँ तो लाइक ओवरऑल ठीक है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो बच्चे दे रहे हैं अगले साल, उनको आप क्या टिप्स दोगे? यार ये याद रखना, लाइक PYQs करो, मॉक्स दो, एनालिसिस करो, बस यही है। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? विक्रांत योग। पहला अटेम्प्ट था? दूसरा दोनों का दूसरा। सो पेपर से एक रात पहले क्या थॉट था? पेपर से एक रात पहले तो ये था कि अब एट द एंड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता, अब जितना पढ़ा है इतने दिनों तक वही काम आएगा। बस वही था, रिवाइज कर लिया सुबह उठ के, सेकंड शिफ्ट थी तो बस इतना ही था। मैंने कुछ नहीं करा, मतलब एक दिन पहले मैं अवॉइड करता हूँ कुछ भी। एक दिन पहले तो ऐसा ना कि यार अब इतने टाइम प्रिपेयर कर लिया तो वो एक आखिरी एक दिन का कोई पॉइंट बनता नहीं है, वो इतना दिन जो किए हो उतना ही आएगा। एक दिन पहले तुम PCM का सिलेबस एकदम नहीं कवर कर सकते, बट ये था रिवीजन कर लिया जो टॉपिक्स कमजोर थे उसका। ड्रीम कॉलेज कौन सा है? ड्रीम कॉलेज तो एज सच मतलब कोई ऐसा फिक्स करके नहीं चला है, बट ये कि IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली। सो लाइक आगे कॉलेज में क्या परस्यू करना चाहते हो आप? कोई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस। तो लाइक आपको एरोस्पेस उसमें जाना है, नासा वगैरह, इसरो? सो लाइक आपको ऐसे इसरो में मतलब वो करना है, तो आपको ऐसे स्पेस में इंटरेस्ट है? स्पेस में, एविएशन में वैसे interest है। तो इंडिया में ही करना है फिर बाहर भी इंटरेस्ट है? बाहर मतलब जैसे थोड़ी और एडवांसमेंट्स हैं इस फील्ड में तो मैं बाहर परस्यू करने की कोशिश करूंगा, मतलब फर्दर स्टडीज और इस फील्ड को परस्यू करने, रिसर्च परस्यू करने के लिए बाहर जाना। सो लाइक जैसे आपने बताया कि आपको क्या बाहर से परस्यू करना है, तो आप क्या वो स्वदेश का दूसरा पार्ट बनाना चाहते हो? स्वदेश का दूसरा पार्ट बनाना चाहते हो आप भी? पहले नासा, फिर वापस इंडिया, फिर कुछ इनोवेशन इंडिया में, और फिर यही कोशिश करूंगा कुछ तो कुछ। तो और आप बीटेक, तो बीटेक के बाद क्या प्लान है? मास्टर्स, जॉब वगैरह या स्टार्टअप तो नहीं, अब वो डिपेंड ही करेगा कॉलेज में कि क्या क्या चीजें टर्न आउट होती है। बाकी तो यही है कि हाँ एट द एंड यही है कि बीटेक के बाद मास्टर्स के बाद जॉब देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि अब जैसे मैं यहाँ पे तो स्टूडेंट से पूछता हूँ, मैंने IIT दिल्ली में गया था तो मैंने वहाँ पे स्टूडेंट से बात की, तो उनका भी अलग ही स्ट्रगल है, कॉलेज के अंदर भी वो चीज है, चीजें डिपेंड करने लग जाती हैं कॉलेज में आती ही, तो तभी सब चीजें अलग होता है। क्योंकि एग्जाम क्रैक करने का आपका पूरा वो पोटेंशियल है चला गया, अब भाई IIT में भी आपको वो चीज मेंटेन रखनी पड़ेगी। हाँ वो तो है, CGPA मेंटेन करके रखनी चलती है। हाँ तो लाइक जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हैं 2026 में, उनको आप क्या वो दोगे कि वो गलतियां ना करें जो आपने करी हो,
या जो जिससे आप सीखे हो? सीखे तो ये है कि मतलब अपने है ना सब्जेक्ट्स डिफाइन कर लो. फॉर एग्जांपल लाइक किसी के 3 है अच्छे तो दैट इज गुड कि 3 अच्छे हैं. बट ये है कि किसी का अनश्योर है कि कितना कर सकते हो कितना नहीं. तो लाइक पर्सनली मेरा था कि मेरी मैथ स्ट्रांग है, मैथ्स और फिजिक्स को लेके चला था मैं. ठीक है, तो उसको ही मैंने इतना अच्छा कर लिया था कि उसका नो स्कोप ऑफ एरर था उस सब्जेक्ट में. तो वही था कि मैंने डिफाइन कर लिए थे 2 सब्जेक्ट. तो दैट इज एन गुड ऑल्टरनेटिव. सेम थिंग कि मतलब 2 सब्जेक्ट्स आपके, क्योंकि आपको एट द एंड अपना टोटल मैक्सिमाइज करवाना है. तो अब 2 सब्जेक्ट्स मतलब 200 नंबर भी आप अगर आउट ऑफ लेके चलोगे तो उसमें आपकी अच्छी खासी 99 नंबर परसेंटाइल आ जाएगी. मेंस के लिए तो ये है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखो, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट अच्छी करो. जेई के अलावा कोई और प्लान भी है? अभी तो नहीं, मतलब इसी फील्ड में इंजीनियरिंग की परस्यू करने के लिए और एग्जाम दिए, मतलब फॉर्म्स भरे. मेरा हैबिट सेट प्लान भी रखा हुआ है साथ में. सो लाइक आपने मटेरियल वगैरह में क्या यूज किया था? मटेरियल में तो सर लाइक मैं कोचिंग में एनरोल्ड था तो उसकी मॉड्यूल्स लगाई थी. और पीवाईक्यूज बस पीवाईक्यूज था जो. मैंने मतलब पहले से ही अपना थोड़ा जो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग है केमिस्ट्री और फिजिक्स, उनमें थोड़ा पहले से ही एडवांस लेवल के वो क्वेश्चंस लगा रहा था. तो मेंस मैंने उतना स्पेसिफिकली फोकस नहीं करा, बट मैथ्स में हम मेंस की पीवाईक्यूज कर रहे थे क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है. सो लाइक अब घर जाके क्या क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स वगैरह भी पूछेंगे पेपर पेपर कैसा? और पेपर तो सही हुआ, अच्छा हुआ. ऐसा नहीं है कि बेकार एकदम. तो अच्छा हुआ है, डिसेंट हुआ है कि हो जाएगा बढ़िया. आई मीन परसेंटाइल. बट ये अब थोड़ा तो चिल करने का मौका होगा. एडवांस का अब तैयारी स्टार्ट करेंगे. एडवांस. हाँ, जेई एडवांस की तैयारी स्टार्ट करेंगे और फिर बिट सेट तो है ही मेरा सेकंड. तो लाइक क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो? परसेंटाइल 96 97 आराम से आ जाएगी. 98 99. अपन से 1 परसेंटाइल सर वो एट द एंड डिपेंड भी शिफ्ट पे करेगी कि पेपर की डिफिकल्टी क्या थी. और सेकंड शिफ्ट का पेपर बोलते हैं काफी टफ भी रहता है. सर मेरी ऐसा मुझे लगता तो नहीं ऐसा था क्योंकि लाइक मेरा जनवरी अटेम्प्ट में 29 थे ना लास्ट डे. 29 शिफ्ट 2 थी मेरी, तो वो तो बहुत इजी थी. हाँ, तो ऐसा नहीं रहता कि शिफ्ट 2, वो डिपेंड ही करता है कि कैसा पेपर बनेगा. ये मॉडरेट था पेपर. ठीक है, थैंक यू. आपका नाम क्या है? आत्रेय। पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये दूसरा अटेम्प्ट था। क्या आपने इस अटेम्प्ट से सीखा? ये वाला अटेम्प्ट काफी इजी आया था. जैसे मैंने 4 अप्रैल 7 अप्रैल के रिव्यू देखे थे कि पेपर काफी लेंदी है और डिफिकल्ट है, तो उस हिसाब से तो नहीं आया था. मतलब पेपर काफी हद तक इजी आया था. एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या आपकी? 95 अबव. तो ड्रीम कॉलेज कौन सा है? प्रायोरिटी तो NIT है अभी मेंस के हिसाब से, और DU वगैरह भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है. तो लाइक देखो, तो आप पेपर क्रैक करते हो तो इससे भी सीखते भी हो. तो या तो आपने इस अटेम्प्ट से क्या सीखा और नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या सिखाओगे स्टूडेंट्स को? यही कि फर्स्ट फोकस NCERT पे ही रखना है. तो बस यही, फर्स्ट फोकस NCERT, उसके बाद आप दूसरा रिफ्रेशर ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.